Good morning, everyone. I hope you are getting my voice properly and screen is also visible. Okay. So without wasting time, we will start with our second lecture of first unit. That is, if you remember, we have started last lecture by introducing the syllabus to you all, what exactly we are going to or we are supposed to do in this particular semester. As our subject is that is about information technology, definitely we are going to understand and we are going to learn many things regarding computer. We are going to look forward for the first chapter of your model number 1, that is introduction to computers, in which we are going to study about history and parts of computer. Okay, so let's start with this chapter. As if you remember, in last lecture we have started द चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जहाँ पे हमने कंप्यूटर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था. कंप्यूटर का मैंने एक फुल फॉर्म भी आपको बताया था कि हाउ यू शुड रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली अ कंप्यूटर इज. सो अगेन I would like to tell you that computer, that is the full form of computer, is that is commonly operated machine purposely used for technology, education and research. So that particular thing we have seen. Even you can see the computer as an electronic device which can receive the input, which processes that particular input and produces the required output to the user. So that can also be considered as one of the definition for computer. After that, we have seen some of the advantages and disadvantages of computer. As we all know, why we use computer nowadays. Everywhere you go, computer is there. Definitely, computer is there. So why we use computer? Because obviously certain advantages are there of using computer. So in that particular regard, we have seen some of the advantages such as speed, then accuracy, reliability, automation, storage capacity, consistency, precision. ये कुछ एडवांटेजेस हमने देखे हैं. ओके, बट along with the advantages, some few disadvantages are also there regarding computer or usage of computer. The first one, that is about the human instruction. So as we all know, whenever we are going to use a computer, definitely it is going to provide you the speedy and accurate result. But the thing is, whatever instruction is provided to the computer, on that instruction only computer is going to work. इसका मीनिंग क्या हुआ? That means, can I say, computer is totally dependent on human instruction, and this can be considered as the biggest disadvantage of a computer. Why? Because if a human being who is going to give the instruction to the computer, if those instructions are wrong, then obviously whatever output you are looking for, you are not going to get that output. So if wrong input you are going to give to the computer, definitely you will get the wrong output, and hence this can be considered as the disadvantage of computer. It works only on human instruction. Whatever you are going to pass the instruction to the computer, only in that regard computer is going to work, and then only you are going to get the output as per your input. So this is the biggest disadvantage of a computer. Next one, that is about, yes, as it is an electronic device. ये एक device है, ये एक machine है. So it cannot think itself. खुद कुछ सोच नहीं सकता. Computer do not have any decision making power. Yes, because we have seen कि human पे वो पूरा dependent है. Whatever input human will give to the computer, only those input will be processed and you will get the output. So computers don't have any decision making power, even they don't have any type of intelligence. जस्ट मतलब बोलते हैं ना कि जितना दिया है उतना ही करेगा, वैसे ही कंप्यूटर का है. जितना आप इंस्ट्रक्शन दोगे, जो भी आप उसको बोलोगे, उतना ही वो करेगा. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो खुद कुछ डिसीजंस नहीं ले सकता, खुद कुछ कर नहीं सकता. इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग. And the last one is, that is about the emotion. Yes, of course,
देखो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो व्हाई वी से ऑलवेज कि ह्यूमन बीइंग्स आर मच पावरफुल देन कंप्यूटर, बिकॉज एक तो पहले हमको मालूम है कि कंप्यूटर्स को बनाया किसने, तो हम लोगों ने ही बनाया। दैट मीन्स ऑब्वियसली अगर ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू क्रिएट सच थिंग दैट इज कंप्यूटर, देन डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स का इंटेलिजेंस इज टू मच बेटर एज कंपेयर टू कंप्यूटर। सिमिलरली दूसरा एक है कि बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ में अपने टास्क जो हम लोग कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड व्हाट व्हाट वी डू इज कि कुछ काम करने के लिए जस्ट एक सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर है और उसी को स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो आप, ऐसे नहीं होता। कभी कभी ऐसे होता है कि वी डू यूज आवर इमोशन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। ह्यूमन बीइंग्स के पास ये एक फीचर है, दैट इज दे हैव द इमोशन। सो कोई भी टास्क कंप्लीट करते वक्त इमोशंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे लाइफ फॉर ह्यूमन बीइंग, बट यही सेम चीज कंप्यूटर के पास नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि कंप्यूटर जस्ट जितना इंस्ट्रक्शन उसको मिलेगा उसको विदाउट एनी इमोशन वो क्या करेगा, सिर्फ करते रहेगा। एंड फिर यही एक उसका एडवांटेज भी बन जाता है, बिकॉज टायरलेसली कंप्यूटर कितना भी काम कर सकता है, कभी भी वो थकेगा नहीं। जितना भी है आप जब जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तब तक वो कंप्यूटर क्या करते रहेगा, वो काम जितना भी आप दोगे वो करते ही रहेगा। सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर। आई होप आपको सब याद रहेगा एंड आपको वो पार्ट जो हमने देखा था दैट इज बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वो आपको समझा रहेगा। यस, चलो क्विकली गिव मी द कंफर्मेशन so that we can start with the next topic. बोलो जल्दी। ओके चलो। Now the next part we are going to study is about the classification of computer. Nowadays we see variety of computers, although they have all belong to we can call it as fifth generation. So they can be divided into different categories depending on say you can see on the screen also कि जब भी आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर आप देखते हो तो वी कैन क्लासिफाई द कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस, मतलब कौन से चीज के लिए कौन से पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, और एल्स यू कैन क्लासिफाई द कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू द स्पीड और साइज ऑफ द कंप्यूटर, कितना साइज है कंप्यूटर का और स्पीड कितना है, एंड द लास्ट वन अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोसेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक विथ our syllabus only, and in our syllabus we are going to classify the computers based on two categories. So just keep in mind two categories कौन से। तो पहले वाला that is on the basis of working principle, that is according to the purpose, and second one जो है that is about according to the speed and data processing। ये दोनों combine ही करेंगे हम लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। कीप इन माइंड ये जो क्लासिफिकेशन है ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कैन कॉल इट एज से वर्किंग प्रिंसिपल और डेटा प्रोसेस। तो यू कैन सी हियर थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आर देयर। फर्स्ट वन एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड वन डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड one is the hybrid computer. Now one by one we will see what exactly these computers are. Now meanwhile what you can see is आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें आप जो भी कंप्यूटर्स है उन कंप्यूटर का आप वहाँ पे फोटो या कुछ देख सकते हो। जो पुराने वाले कंप्यूटर्स है या कुछ ऐसे डिवाइसेस है जिनका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, तो उसके फोटोज या पिक्स आपको उस स्लाइड में दिखाई देंगे। So please just see that particular photos and whatever information I am going to tell you. So please remember that particular information. So let's start with the first one, that is first category of computer on the basis of working principle. The first one, that is analog computer. Now this type of computer does not process number and alphabet. So it takes input continuously from varying physical magnitudes like temperature, then speed, then voltage, pressure, sound, etc. So this is not a very common computer. It works by measuring the data. So examples यहाँ पे दिए हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, like thermometer, speedometer,
electric meter. So they are used by scientists and engineers, and they are used for measuring temperature, speed and current. So mainly they are, just keep in mind कि ये analog computers जो है, they are mainly used for scientific, engineering and process control application. Okay, so this is all about analog computer. Next one is about the digital computer. So whatever we use nowadays, so that can be considered as a digital computer. So you can see one of the pic I have given there, that is of the laptop. So in digital computers, normally it process numbers and alphabets. So it takes input from various input devices and converts them into zeros and ones, and then process it and gives the output to human readable language. That means ये जो digital computers है, they accept data in terms of binary form. उसको हम बोलते हैं 0 and 1 का लैंग्वेज, उसी को हम मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. सो कीप इन माइंड कि वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस यू आर गोइंग टू पास, वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कैसे रीड करेगा, इट एक्सेप्ट्स द डेटा ओनली इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. तो ये 0 1 का एक लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी फॉर्मेट. सो ये बाइनरी फॉर्मेट पे ही ये काम करता है. ओके, so digital computer process the data in step by step form. So there is a concept of stored program that is it is usually meant for the business application. So they work by counting the data, and most of the computers which we are using nowadays, these are considered as a digital computers. So अब you can see कि other devices are also there जिसमें digital computers का use होता है, such as calcies, then car speedometers, then electronic watches, stopwatch. So these are the few examples of the devices in which we use a digital computer का concept. So this is all about the digital computer. Keep in mind क्या क्या difference मैं बता रहा हूँ वो याद रखो. First one जो था analog computer, जिसमें हम नंबर एंड अल्फाबेट को प्रोसेस नहीं करते. सो फॉर दैट रीजन हम वहां पे क्या कर रहे थे, टेम्परेचर, वोल्टेज, प्रेशर, साउंड, इनको मेजर करने के लिए वो डिवाइसेस थे, एंड बेसिकली वो साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है. एंड अबाउट द डिजिटल कंप्यूटर, ये तो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, डेली लाइफ में. व्हाई? बिकॉज दे टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर फ्रॉम एनी ऑफ द इनपुट डिवाइसेस, एंड देन उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरी फॉर्म, दैट इज 0 and 1, एंड फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं. सो दीज आर द कंप्यूटर्स, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर्स, दे प्रोसेस नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी यूज these computers. Okay, the next one, that is about the hybrid computer. Now as the name suggests, hybrid computer. So hybrid computer is basically a combination of all good qualities of analog as well as for digital technology. क्योंकि नाम ही दिया है ना हाइब्रिड. सो हाइब्रिड मतलब क्या हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन. बट दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब दोनों में जो अच्छे क्वालिटीज है वो क्वालिटीज को कंबाइन करके the computer which we are going to create, that is known as a hybrid computer. So in this type of computers, some calculations are done in analog portion and some calculation can be done with the help of digital part. So देखो हाइब्रिड नाम दिया है, उससे ही हमको पता चल रहा है कि ये दोनों के काम करेगा. So जो एनालॉग भी करता है वही सेम चीज वो यहाँ पे भी कर सकता है, एंड डिजिटल वाला टास्क जो है वो भी आप यहाँ पे कंफर्टेबली कर सकते हो. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. सो इट इज कंसिडर्ड एज अ डिजिटल कंप्यूटर which accepts and converts the data into binary format and then process them into digital form. Similarly, it also process analog data. So that's why this particular type of computer is known as a hybrid computer. Now this computer uses modem to convert analog signals into digital signals and vice versa. So basically these computers can handle digits, that is numbers handle कर सकता है, ये टेक्स्ट को हैंडल कर सकता है, साउंड को हैंडल कर सकता है, मल्टीपल टाइप ऑफ ग्राफ्स यू कैन यूज इन दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर. सो
ये दोनों कंप्यूटर्स जो इंडिविजुअली कर रहे थे, एनालॉग एंड डिजिटल, ये दोनों का काम कंबाइनली वी कैन डू, वी कैन परफॉर्म यूजिंग दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर. सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी. आई होप ये फर्स्ट कैटेगरी जो था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ये तीन टाइप्स के कंप्यूटर आपको समझा रहेगा ये टॉपिक. यस, फटाफट बोलते जाओ, चलो. ओके, ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेटा प्रोसेसिंग. ओके, सो जस्ट यू कैन कंसिडर एज अ साइज एंड स्पीड बोल सकते हो. तो ये जो क्लासिफिकेशन है, अब इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे. नाउ बेसिकली एज पर आवर सिलेबस वी आर गोइंग टू कैटेगराइज, वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन दिस कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड स्पीड. तो यहाँ पे हम 4 से 5 अलग अलग टाइप्स देखेंगे. अब उसमें सबसे पहले जो टाइप आता है दैट इज नोन एज अ सुपर कंप्यूटर. नाउ एज अ नेम सजेस्ट, सुपर कंप्यूटर, दैट मीन्स कि ये कंप्यूटर में सुपर नाम दिया है, दैट मीन्स कुछ तो बड़ा रहेगा, कुछ तो पावरफुल रहेगा. सो दिस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ ऑल. अब यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा तो स्पीड सुपर कंप्यूटर तो अवेलेबल है नहीं, बट यस दीज आर द फास्टेस्ट एंड द लार्जेस्ट कंप्यूटर. एंड फॉर दैट रीजन ऑब्वियसली ये लार्जेस्ट है, पावरफुल है, फास्टेस्ट है. सो फॉर दैट रीजन इट रिक्वायर्स अ बिगर रूम. तो आप बाजू में देख सकते हो सुपर कंप्यूटर्स के लिए आप देख सकते हो एक बड़ा रूम लगता है उनको, उनके लिए. दैट मीन्स ऑब्वियसली साइज भी ज्यादा ही रहेगा इनका. So a supercomputer is basically we do not use such type of computers for commercial data processing. तो डे टू डे लाइफ में या फिर नॉर्मल अपने घर के लिए हम लोग ये यूज नहीं करते. ऑब्वियसली ये लार्जेस्ट है, दैट मीन्स दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, पावरफुल है एंड फास्टेस्ट है, दैट मीन्स दे कैन परफॉर्म मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली. एंड कोई भी कैलकुलेशन है या कोई भी टास्क कंप्लीट करना है तो दे विल परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क फास्टर. एंड फॉर दैट रीजन दिस टाइप ऑफ सुपर कंप्यूटर, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एरियाज ओनली. तो कौन से एरियाज? तो ऑब्वियसली रिसर्च एरिया हो सकता है, डिफेंस एरिया हो सकता है, एविएशन एरिया हो सकता है. तो ऐसे एरिया जहां पे टू मच कैलकुलेशन इज देयर, टू मच वर्क हैज टू बी कैरिड आउट, वहां पे सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो कि सच टाइप ऑफ सुपर कंप्यूटर इज यूज इन वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, मिलिट्री सिमुलेशन, रिसर्च लैबोरेटरीज एंड एनिमेशन मूवीज. तो इस ऐसी जगहों पे ही सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं. नाउ इफ आई प्रिसाइजली टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर, तो इसका स्पीड कितना है यू वोंट बिलीव. ये सुपर कंप्यूटर मिनिमम 10,000 मिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. एंड ये तो मैंने सिर्फ मिनिमम बताया, अगर मैक्सिमम आप देखोगे तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज 1.2 बिलियन इंस्ट्रक्शन. तो ये अब सुपर कंप्यूटर में भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा है, उससे भी बड़ा, उससे भी पावरफुल, ऐसे भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द वर्क यू आर गोइंग टू कैरी आउट. बट जस्ट कीप इन माइंड रिगार्डिंग द स्पीड कि सुपर कंप्यूटर का स्पीड है कितना. इट कैन प्रोसेस 10,000 मिलियन पर सेकेंड टू 1.2 बिलियन पर सेकेंड इंस्ट्रक्शंस. मतलब इतना रेंज है उसका. एंड इट कैन सपोर्ट अप टू 10,000 टर्मिनल्स ऑल्सो. मतलब एक सुपर कंप्यूटर कैन गेट कनेक्टेड टू 10,000 डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑल्सो एंड उनका भी प्रोसेसिंग ये हैंडल कर सकता है. सो इतना इसका व्हाट वी कैन कॉल इट एज की पावर आप देख सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन से ही आपको पता चल जाएगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सुपर कंप्यूटर, तो इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, मार्क दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये आपको याद होना ही चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया में भी सुपर कंप्यूटर क्रिएट किया गया है. तो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, किसी को पता है?
Yes, Param. Param. Yes, 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 yes. Good. So India's first supercomputer was Param. And if we talk about world's first supercomputer, then उसका नाम है ILLIAC. That is fourth generation का ILLIAC. ये उसका what we can call it as एक नाम दिया गया है उसको. ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है. तो एटलीस्ट ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. एंड वो भी नहीं तो एटलीस्ट इंडिया का कौन सा सुपर कंप्यूटर है वो तो आपको मालूम हो गया अभी. ओके. So this is the first type of computer under the category that is computer according to the size and the speed. ये हो गया आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर. अब इससे आगे जो जो हम देखेंगे ना वो इससे भी थोड़े छोटे छोटे कंप्यूटर्स या पावर उनका कम रहेगा, स्पीड उनका कम रहेगा. एंड फाइनली वी विल कम टू आवर डे टू डे यूज कंप्यूटर दैट इज आवर डेस्कटॉप, जो हम घर पे पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर. तो वहां तक आएंगे. ओके. So after supercomputer, now the next one is known as the mainframe computers. अब mainframe computer as you can see इसके लिए भी जगह ज्यादा लगता है. आप देख सकते हो बाजू में फोटो में देख सकते हो, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं जगह लग रहा है. तो एक बड़े रूम में से एक छोटा सा जगह भी उसको इट इज लाइक अ कपबोर्ड एज यू कैन सी, है ना. सो एज कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर इसका साइज क्या है, कम है. पावर क्या है, कम है. And even if we talk about in terms of cost, तो as compared to super computer, mainframe computer का cost भी क्या है, कम ही रहेगा. So it is less powerful and cheaper than super computer. Now these type of computers can also be used for scientific and business application, but mainly अब सुपर देखो साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए जहाँ पे रिसर्च लैबोरेटरीज वगैरह होते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर का यूज होता है. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेंबल द सुपर कंप्यूटर. एंड फिर क्योंकि कॉस्ट भी ज्यादा लगता है ना, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो फॉर दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि इसके लिए कॉस्ट भी कम लगेगा, आपको साइज भी कम लगेगा, है ना. तो फॉर दैट रीजन ओनली दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन. Now these are mainly used in say at airport, जहाँ पे एयरपोर्ट के लिए नॉर्मली यूज किए जाते हैं. रेलवे रिजर्वेशन जहाँ पे सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है. नाउ दे हैव ऑब्वियसली हाई स्पीड एज कंपेयर टू. अगर सुपर कंप्यूटर देखेंगे तो मेन फ्रेम में भी स्पीड है बट इतना नहीं है. ओके. सो इसका स्पीड अगर हम देखेंगे तो स्पीड कितना है, रेंज that is about millions of instruction per second. एंड वही हमने सुपर कंप्यूटर का देखा था तो वहां पे कितना था, मैक्सिमम कितना था, तो 1.2 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. दैट मीन्स अगर आप कंपेयर करोगे तो मेन फ्रेम में थोड़ा कम है स्पीड, बट स्टिल मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस पर सेकेंड यूजिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर. So they can even this type of computers can also support 1000 terminals. So आप देख सकते हो कि ठीक है सुपर कंप्यूटर के इतना तो पावरफुल नहीं है, इतने तो सुपर कंप्यूटर जैसे तो फीचर्स आपको नहीं मिल रहे, बट स्टिल फॉर कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कंप्यूटिंग पर्पज you can go for this type of computer that is mainframe computer. Next one that is about mini computer. यस अब ये जो कंप्यूटर है नाम से ही आपको सब पता चल जाएगा. अब देखो अब थोड़े छोटे छोटे वर्जन्स पे आ रहे हैं. सो एज कंपेयर टू मेन फ्रेम दीज आर स्मॉलर बट दे आर बिगर देन द माइक्रो कंप्यूटर. अब माइक्रो कंप्यूटर मतलब कौन से, तो अपने वाले जो हम घर पे यूज करते उसको हम बोलते हैं पीसी, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर. सो ऑब्वियसली कि ये मिनी कंप्यूटर जो है, दो द नेम इज मिनी, नाम से ऐसे लग रहा है कि यार ये बहुत छोटे रहेंगे. नहीं, छोटे मतलब मेन फ्रेम से छोटे है. साइज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज स्मॉलर एज कंपेयर टू मेन फ्रेम, बट दे आर बिगर इन साइज एज कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर. सो these are also considered as less powerful and cheaper than mainframe, and they are used for small task, small scientific and business application. तो जो बड़े बड़े रिसर्च लैबोरेटरीज में हम लोग सुपर कंप्यूटर यूज कर रहे थे तो वहां पे ही
अगर कुछ छोटे छोटे टास्क आपको करने हैं बट साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड कुछ टास्क करेंगे, तो दोज पर्टिकुलर टास्क कैन बी परफॉर्म यूजिंग दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज मिनी कंप्यूटर. They can support software like Fox Pro, Word, etc. And they can work on the concept of LAN and WAN. So ये लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा मिनी कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं. ओके, सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, वहाँ पे एक फोटो दिया है. सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ इट शुड लुक लाइक द मिनी कंप्यूटर्स. सो दे आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज मेन फ्रेम, चीपर है. एंड अगर हम साइज के बारे में बोलेंगे तो यू कैन सी इट इज अबाउट द साइज ऑफ रेफ्रिजरेटर. तो अपने घर पे जो छोटा फ्रिज रहता है ना, तो फ्रिज के साइज का ये कंप्यूटर होता है. So it is mainly used for scientific research and also in places like banks and large organization. तो वहाँ पे ये mini computers use किए जाते हैं. So this is the third category or third type of computer we have seen. Now, apart from that, one more category is there as per our syllabus, and that is known as a workstation. जो यहाँ पे नहीं है, इस PPT में नहीं है, but still workstation is another criteria, another type of computer which is in between mini computer and what we can call it as mainframe computer in terms of processing power. So they are powerful than micro computer. ये जो सामने आपको दिख रहा है उससे भी ये powerful होते हैं workstation, and generally they use for scientific and engineering application. So just एक चीज याद रखना है कि मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर जो है उन दोनों के बीच में और एक आता है, दैट इज नोन एज अ वर्क स्टेशन. जो आपके जो पीसीज है, पर्सनल कंप्यूटर्स है, उनसे उनका प्रोसेसिंग पावर थोड़ा ज्यादा होता है. ओके, सो नॉर्मली लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इनको यूज किया जाता है. Now we will come to the last part of this particular classification, and that is, as you can see on the screen, that is personal computer, or you can call it as microcomputer. अब नीचे वहाँ पे कुछ मैंने टाइप्स भी दिखाए आपको, that is types of microcomputer. राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो yes, this is the desktop which we use at our home. Monitor is there, keyboard is there, CPU is there. So desktop computer is there. लैपटॉप कैन बी कंसिडर्ड एज अ माइक्रो कंप्यूटर, जो अपने पर्पज के लिए आप यूज करते हो. एंड लास्ट वन इज जो छोटे कंप्यूटर्स आजकल आए हैं मार्केट में, दैट इज उनको बोला जाता है पाम कंप्यूटर और पाम टॉप. सो लैपटॉप थोड़ा सा बड़ा होता है, पाम टॉप थोड़े छोटे होते हैं. सो वी कैन कंसिडर इट लाइक जो अपने टैबलेट्स वगैरह होते हैं ना, तो टैबलेट्स के जैसे जो नोटबुक या छोटे कंप्यूटर्स होते हैं उनको पाम टॉप बोला जाता है और हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोला जाता है. Now, this is the smallest general purpose computer, and these are based on microprocessor technology. For that reason, it is known as a microcomputer. Now, several peripheral devices we can connect to the microcomputer, such as keyboard, printer, scanner, digital camera, modem, etc. Now, they are basically user-friendly and designed for single user, but they can be capable of doing the networking also. So basically ये and अगर कॉस्ट के बारे में भी देखेंगे तो as compared to other computer, that is mini computer, mainframe computer, the cost of this micro computer is cheaper as compared to others, and for that reason only these type of computers we use. तो हमारे पर्सनल यूज के लिए जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर. And for that reason it can be used at homes, offices, schools, etc. So हर जगह पे आजकल आपको यही दिखाई देते हैं. So यहाँ पे आपका ये फर्स्ट टॉपिक है, that is about the classification of computers, and जिसमें हमने दो क्लासिफिकेशन के टाइप्स देखे. फर्स्ट वन हमने देखा that is on the basis of working principle, जिसमें हमने तीन देखे, that is analog, digital and hybrid. And second one जो हमने देखा that is on the basis of size and speed, जहाँ पे हमने 5 डिफरेंट टाइप्स देखे. फर्स्ट वन सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, एंड द लास्ट वन इज दिस वन, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर. सो आई होप ये जो अभी हमने टॉपिक कवर किया ये आपको प्रॉपरली समझा रहेगा. यस, प्लीज गिव द कंफर्मेशन.
बोलो जल्दी। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट लेट मी चेक। Okay, now today one more topic we will start, that is about the generations of computer. Okay, so ठीक है, अब कंप्यूटर के बारे में तो हमने सीख ही लिया कि व्हाट एग्जैक्टली कंप्यूटर इज, उसके टाइप्स भी देखे। नाउ वी वांट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जब भी इवोल्यूशन कंप्यूटर का हुआ था तो कब से हुआ था, क्या हुआ था, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, एंड आज जो हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं इट बिलोंग्स टू द फिफ्थ जनरेशन, पांचवा जनरेशन चल रहा है आज, जो अभी जो चल रहा है वो, एंड इट कीप्स ऑन इवोल्यूशन, इवॉल्विंग हो रहा है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन इज देयर। सो यू नेवर नो और 4-5 साल के बाद कंप्यूटर्स में क्या चेंजेस आएंगे। So the term generation indicates the type of technology used in the computer construction. So keep in mind, now whatever topic we are going to see or learn, that is known as the generations of computer. तो ये generation क्या है? तो कंप्यूटर्स बनाते वक्त कौन से टाइप के टेक्नोलॉजीज उस वक्त यूज किए गए थे। सो जैसे जैसे नए टेक्नोलॉजीज आते गए उसी हिसाब से जनरेशन्स अलग अलग बनते गए। सो द न्यू टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली improve the speed, accuracy and storage capacity of the computers. So mainly we can consider the generations of computer में 5 generations है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, एंड अभी जो चल रहा है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिफ्थ जनरेशन। So computers can be divided into these 5 generations depending on the technologies used. Now I would like to tell you कि ये जो भी generations है, अब हर एक generation में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किया गया है वो आपको याद रखना पड़ेगा, so that you can do the categorization properly. Okay, so let's start with the first one, that is about this one, first generation computer. Now as you can see on the screen, देखो फर्स्ट जनरेशन, अब इसका जो टाइम पीरियड है कि इसका इवोल्यूशन कब हुआ, तो कब हुआ, दैट इज इन 1946 से लेके 1959, ये टाइम पीरियड में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज किए जाते थे। अब उस वक्त कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी यूज किए जाते थे, तो डेफिनेटली उस वक्त वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू कैन सी, ये जो कंप्यूटर आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो देख के आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दोज वैक्यूम ट्यूब्स ये कंप्यूटर्स ना दिखते वक्त कैसे दिखते थे, बल्कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगते थे। एंड ऑल्सो बिकॉज वी हैव यूज दैट वैक्यूम ट्यूब, तो उसमें हमको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता था, दैट इज अबाउट हीटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब जो है ना उनको यूज किया जाता था कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए एंड बाकी का प्रोसेस करने के लिए। तो जितना आप ज्यादा यूज करोगे उतने ही वो वैक्यूम ट्यूब क्या होते थे, गर्म हो जाते थे, एंड ड्यू टू दिस ये जो भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता था, दैट इज अबाउट द हीटिंग प्रॉब्लम, एंड फॉर दैट रीजन ओनली एज यू कैन सी साइज भी बहुत ज्यादा था, तो एक रूम लगता था इन कंप्यूटर्स को रखने के लिए। तो दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्पेस, एंड और एक चीज लगता था दैट इज अबाउट एयर कंडीशन, एसी। क्यों? फॉर कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स इतने नंबर्स में आप यूज करते थे तो उनसे जो हीट निकलता था उसके कारण ये कंप्यूटर्स गर्म हो जाते थे। सो टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स वहां पे एयर कंडीशन में इनको रखा जाता था। इवन इफ वी टॉक अबाउट द पावर कंजम्पशन, तो यस ये कंप्यूटर पावर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा करते थे, एंड स्पीड के बारे में अगर देखेंगे तो इनका स्पीड जो था वो रिलेटिवली बहुत स्लो था। सो द फर्स्ट कंप्यूटर इन दिस फर्स्ट जनरेशन विच वाज डेवलप, उसका नाम था ENIAC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसमें
18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। सो जस्ट यू कैन इमेजिन 18,000 वैक्यूम ट्यूब मतलब क्या हुआ। तो उसके लिए कम से कम 1500 स्क्वायर फीट का एक रूम लगता था उसको रखने के लिए। जस्ट इमेजिन 1500 स्क्वायर फीट का मतलब थ्री BHK का एक फ्लैट, इतना रूम तो उसको रखने के लिए लगता था। एंड उसका जो वेट था वो वेट कितना था, 30 टन, इतना उसका वेट था। बट इफ यू टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उसका स्पीड जो था ना वो मिली सेकेंड्स में था। मतलब अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आप पास करते हो तो उसको रन करने के लिए मिली सेकेंड तो लगता था एटलीस्ट। तो उसका स्पीड वॉज मेजर इन मिली सेकेंड्स। दैट मीन्स इट वॉज रिलेटिवली स्लो इन टर्म्स ऑफ स्पीड। तो जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है उनको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता था। Next one, if we talk about some of the second generation computers, now as you can see on the screen, this is the second generation computer. तो रिलेटिवली देखो अभी साइज थोड़ा कम हो गया है, मतलब एक टेबल पे आप उसको रख सकते हो। सो क्या रहेगा, क्या चेंजेस हुए रहेंगे। सो दिस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था, दैट इज फ्रॉम 1959 to 65। एंड मेनली इसमें जो हमने फर्स्ट इसमें वैक्यूम ट्यूब्स जो यूज किए थे ना, उनको रिप्लेस किया गया विथ ट्रांजिस्टर। मतलब पहले जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे। नाउ इन दिस जनरेशन वी स्टार्टेड यूजिंग ट्रांजिस्टर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। So this generation using the transistor were cheaper, consume less power and more compact in size, more reliable, faster than first generation. तो जो फर्स्ट जनरेशन के लिए हमने वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था उनको निकाल दिया गया एंड उसके जगह पे वी हैव इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। एंड ट्रांजिस्टर हमने यूज किया बिकॉज ऑफ दैट उसका साइज छोटा हो गया, पावर कंजम्पशन कम हो गया, साइज भी कम हो गया एंड उसका जो प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बढ़ गया एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। सो इफ वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर जनरेशन, तो उसका स्पीड जो था वो माइक्रो सेकेंड्स में आप मेजर कर सकते हो। सो नाउ यू कैन सी पहला जनरेशन मिली सेकेंड्स में मेजर किया जाता था स्पीड, अब देखो माइक्रो सेकेंड, मतलब कम हो गया। मतलब जो स्पीड जो है वो क्या है, फास्ट हो रहा है। तो आपका प्रोसेसिंग स्पीड जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए लेस टाइम इज रिक्वायर्ड एंड दैट्स व्हाई वी हैव व्हाट वी कैन से यूज दिस टाइप ऑफ जनरेशंस अ लॉट, जहाँ पे स्पीड कम लग रहा है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इवन लेस पावर लग रहा था, लेस इलेक्ट्रिसिटी वाज रिक्वायर्ड, बट स्टिल यस वन मोर थिंग इज कि यहाँ पे भी हीट जनरेशन तो होता ही था, बट यस ऑफ कोर्स लेस हीट वाज जनरेटेड एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको भी एसी में, एयर कंडीशन में रखना पड़ता था। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड जनरेशन। एज यू कैन सी सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस आर गिवन, दैट इज कॉस्टली था, एसी लगता था एंड कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड फॉर सच टाइप ऑफ जनरेशन। सो इसके बाद फिर इवोल्यूशन हुआ एंड देन थर्ड जनरेशन आया कंप्यूटर का। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, जो इवोल्यूशन उनका स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1965 और 66 टू 1971। ये 4-5 साल में उसका इवोल्यूशन हुआ। अब और भी अगर आप देखोगे अभी ये थर्ड जनरेशन का, तो देखो साइज और कॉम्पैक्ट हो चुका है, तो साइज कम हो चुका है, जो हीटिंग प्रॉब्लम था वो भी गया, कम हो गया। देन साइज कम हो गया तो ऑब्वियसली इसका पावर जो है, पावर कंजम्पशन वो भी कम हुआ एंड ऑब्वियसली स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो इंक्रीज हो गया। सो यू कैन सी यहाँ पे हमने क्या किया ऐसे, तो जो सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर को यूज किया था, अब थर्ड जनरेशन में हमने उसको रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ आईसी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं ये नॉर्मली अपने मोबाइल फोन्स, अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना आजकल के, उसमें हम लोग यूज करते हैं। इफ यू रिमेम्बर, आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया रहेगा
कि आपका रिमोट या फिर आपका मोबाइल फ़ोन कब ख़राब हो जाता है, एंड जब उसको रिपेयरिंग के लिए आप जाते हो तो नॉर्मली आपको देखो वहाँ पे जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या बोलते हैं आपको कि आपके मोबाइल का आईसी गया है। सो आईसी गया है मतलब क्या गया है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ये छोटे छोटे चिप्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं आईसी। नाउ एज यू कैन सी, ये आईसी जो है, ये आईसी में इतना कैपेसिटी है, अ सिंगल आईसी हैज मेनी ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर। सो नाउ यू कैन सी, जहां पे सेकेंड जनरेशन में हमने क्या यूज किया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया था कंप्यूटर्स को बनाने के लिए, अब वहीं पे हम आईसी यूज कर रहे हैं, एंड एक आईसी के अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स आर देयर। सो ऑब्वियसली पावर तो ज्यादा ही होगा, लेकिन साइज कम हो जाएगा, एंड ये रिलायबल होगा, एंड स्पीड भी इसका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सो बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आईसीज इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, it improved the secondary storage devices like magnetic tape, magnetic disk, magnetic course, etc. इवन इसी जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करना स्टार्ट हुआ। तो पहले की जो भी जनरेशन थे उसमें नॉर्मली 0 और 1 इस लैंग्वेज का यूज किया जाता था या अदर लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था, बट यही जो जनरेशन है थर्ड जनरेशन, यहाँ से हायर लेवल लैंग्वेजेस का यूज करना स्टार्ट हुआ। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पीड, तो इफ यू रिमेंबर जो पहला था फर्स्ट जनरेशन, उसमें स्पीड क्या था, मिली सेकेंड। सेकेंड जनरेशन में क्या था, माइक्रो सेकेंड। अब यहाँ पे जो स्पीड है दैट इज नोन एज अ नैनो सेकेंड। देखो मतलब स्पीड और कम होते जा रहा है, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड कम कम होते जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन कंसिडर दिस जनरेशन कंप्यूटर आर मच फास्टर एज कंपेयर टू अदर टू। नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट फोर्थ जनरेशन, यस दिस वन। सो ये जनरेशन्स अगर हम बोलेंगे तो 1970 या 1976 के बाद यूज करना स्टार्ट हुआ। नाउ इट लुक्स लाइक अ डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम घर पे यूज करते हैं, ठीक है, बट ये एकदम स्टार्टिंग वाला है। ओके, सो स्टार्टिंग वाला मतलब क्या कि एकदम जब आपने ऐसे कंप्यूटर्स को देखे भी नहीं रहेंगे। सो ये पिक जो है ये फर्स्ट, ये जब जनरेशन आया था तो उस वक्त के कंप्यूटर्स का है, एंड फॉर दैट रीजन यू कैन सी ऊपर मॉनिटर दिख रहा है, एंड नीचे जो है ना दैट इज सीपीयू। ये आड़ा जो रखा हुआ है ना वो सीपीयू है। अब उसी में आप देखोगे वहां पे, तो वहां पे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए जगह है, अलग अलग ड्राइव के लिए जगह है। उस वक्त तो आई डोंट थिंक कि डीवीडी सीडीज वगैरह ज्यादा इवोल्यूशन हुआ था। तो सीपीयू के ऊपर कंप्यूटर रखा जाता था, मॉनिटर रखा जाता था, एंड देन कीबोर्ड यू कैन सी। तो ऐसे पहले रहते थे, एंड उसमें भी अभी कंटिन्यूसली इवोल्यूशन हो ही रहा है। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ जनरेशन, तो इसमें और क्या चेंज हुआ, तो इसमें एक ही चेंज हुआ, दैट इज जो हम आईसी यूज कर रहे थे थर्ड जनरेशन में, यहाँ पे हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया LSIC, दैट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब जो थर्ड जनरेशन में हम सिंपल वाले इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कर रहे थे, वही अब हम फोर्थ जनरेशन में आके लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए। दैट मीन्स these type of circuits will have 5000 transistors on one place। तो एक सिंगल चिप में ही आप बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक साथ यूज कर सकते हो, एंड फॉर दैट रीजन ओनली यू कैन सी कि इसका साइज क्या हुआ, कम होते गया, स्पीड हो उसका बढ़ गया, एंड प्रोसेसिंग पावर जो है वो भी इंक्रीज होते गया। नाउ इन 1981 IBM कंपनी जो है उसने पहला इंट्रोड्यूस किया द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन फॉर द होम यूजर। तो जो अभी आपने फोटो देखा था वो उसी का फोटो था, दैट इज 1981-84 में IBM ने जो इन्वेंट किया था फर्स्ट होम कंप्यूटर, मतलब होम यूजर कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसके लिए ये टाइप के जनरेशन्स और उसके फीचर्स जो है वो यूज किए गए थे। नाउ आफ्टर दैट 1984 में एप्पल ने भी इंट्रोड्यूस किया, एंड उसका नाम था मैकिन्टोश। ओके,
So fourth generation computers also saw the development of GUIs, mouse, handheld devices. So बहुत सारे ऐसे peripheral devices वगैरह भी आए. So fourth generation is the generation जहाँ पे actual evolution from the user's perspective ये start हुआ. अब इसका अगर हम स्पीड देखेंगे तो एज कंपेयर टू अदर्स इसका स्पीड हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पिको सेकेंड्स. अब पिको सेकेंड्स मतलब मिलियंस ऑफ सेकेंड्स, मतलब एक सेकेंड का मिलियन पे मिलियन का पार्ट. ओके, सो अगर देखेंगे तो स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर जनरेशन इज टू मच, दैट इज जो भी प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर जनरेशन. एंड नाउ we will talk about the last one. As you can see, कुछ advantages and disadvantages आप देख सकते हो. Smaller in size, production cost is very low, high processing speed. तो यही सब कुछ इसके advantages है. Okay. Now, if we talk about the last one, that is about fifth generation computer. Yes, of course, ये इसका अगर evolution आप देखोगे तो present जो है and future. तो अभी आज के जो generation generation computers, and even a lot of research work has been put involving large scale funds and brains. तो अभी भी इनके ऊपर बहुत सारा क्या चल रहा है, रिसर्च चल रहा है. एंड कौन से टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज किए जाएंगे, तो यहाँ पे आई विल टेल यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये जो टेक्नोलॉजी है इसी के ऊपर काम चल रहा है. दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसी को मशीन में डालना, सो दैट कंप्यूटर्स कैन डू देयर वर्क ऑन देयर ओन. अब तक हमने देखा कि कंप्यूटर्स को हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है तब जाके वो काम करता है. तो नाउ डेज मेनी रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू क्रिएट सच कंप्यूटर्स विच विल वर्क ऑन देयर ओन. वो खुद कर सकते हैं. एंड अगर हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे तो आज ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाले बहुत सारे डिवाइसेस आप देख सकते हो. So you can see, as you can see, कुछ आपने कार के बारे में सुना रहेगा, फोर व्हीलर. तो जो ऑटोमेटिक फोर व्हीलर है जो खुद ड्राइव करते हैं, मतलब ऑटोमेटिक ड्राइविंग इज देयर, ऑटो पायलटिंग सिस्टम इज देयर. अब एरोप्लेन में तो ऐसा सिस्टम पहले ही है ऑटो पायलट का, तो बट आजकल कार में भी ये कंसेप्ट आ चुका है. दैट इज यू डोंट हैव टू ड्राइव. तो जो कार है वो खुद आपको सिर्फ आपको डेस्टिनेशन देना है. सो एज पर द मैपिंग वो अपने आप आपको उस डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा. तो ऐसे भी कार आजकल आ रहे हैं मार्केट में, अभी अपने यहाँ पे तो नहीं, बट इसके ऊपर रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन. सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, उसका रिसर्च अभी भी चल रहा है. इसमें बहुत सारे अलग अलग नए टेक्नोलॉजीज जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हो आप, वॉइस रिकॉग्निशन बोल सकते हो, मशीन लर्निंग आप बोल सकते हो. तो ऐसे जो भी अलग अलग नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं आईटी में, उनका यूज करके ये जनरेशन बन रहा है. तो अभी भी स्टिल द वर्क इज इन प्रोसेस. द गोल ऑफ दिस टाइप ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज बेसिकली टू डेवलप डिवाइसेस that responds to natural language input and they are capable of learning and self organization. So if I give you example about a natural language processing, तो इसमें सबको मालूम रहेगा एलेक्सा, है ना. तो ये एलेक्सा देखो, हम जो बोलते हैं उसी के ऊपर वो आपको आउटपुट दे देता है. दैट मीन्स व्हाट दे आर डूइंग कि आपका जो वॉइस है उसको आइडेंटिफाई करके उसमें से वो इनपुट फाइंड आउट कर रहा है खुद, एंड फिर प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रहा है. सो सच टाइप ऑफ जनरेशंस जो है आजकल के ज़माने में, आज जो डिवाइसेस या कंप्यूटर्स आप देखोगे, यू कैन कंसिडर दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इन फिफ्थ जनरेशन. सो ये इसका जो टाइम पीरियड है वो तो अभी फ्यूचर तक चलते रहेगा. यू नेवर नो, और 4-5 साल या 10 साल के बाद क्या रहेगा कंप्यूटर्स में, क्या और आ सकता है. बट ऑब्वियसली वी कैन सी कि इसमें प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा ही रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझा रहेगा. यस. Okay, so quickly I will take the attendance. Just wait for a second.
आपका रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 7001 से ना? सो जस्ट वेट, जस्ट वेट। ओके, लास्ट रोल नंबर क्या है आपके इसमें? कोई बता सकता है? दो डिवीजन है ना, आई गेस तो। हाँ, एक मिनट। 7144। ओके। अरे क्या चल रहा है यार? 7144 60 तक है ना पहला वाला? 7060 तक है ना पहला, पहला डिवीजन? यस सर। बोलो जल्दी। पहले डिवीजन का लास्ट रोल नंबर 7060, यस। एंड उसके बाद क्या है? 01। 7101, ओके। एंड देन 7102, ये कहाँ तक है? 71, इसका लास्ट वन क्या है? 7144। ओके, 7144। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं? सेवन वन फोर फोर ठीक है, चलो अभी फटाफट ले लेते हैं अटेंडेंस। आज का डेट क्या है? डेट इज 9। ओके, रोल नंबर वन, अभी मैं अटेंडेंस पूछूंगा आपको, प्रेजेंट ही देना है। रोल नंबर 1 to 10 कौन कौन प्रेजेंट है? रोल नंबर 1 7001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, okay. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Then 7101, 7102, 7103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, okay, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35. Okay, 36, 37, 38, 37, 38, 39, 40 भी है, 41, 40, 41, 42, 43, 44, 7144 नहीं है? चलो, थैंक यू एवरीवन। 7101 सर मेरा लगा था? 7029 मिस हो गया अटेंडेंस क्या गलती हुआ? से। 7029 प्रेजेंट सर मेरा मिस हो गया गलती से। ओके, 7029 ना?
ठीक है, यस सर। ओके लगा दिया। चलो, और कोई है? चलो, थैंक यू। 21, 21, ओके 7020। ओके लगा दिया बेटा, आपका भी 21 का भी हो गया। चलो, थैंक यू, बाय बाय।